دنیا رہے گی، چرچ رہے گا، تو اس سارے زمانوں کو وہ سمبل کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، بتاتی ہے، اس کا پروفیٹک ایسپیکٹ ہمیں دیتی ہے مکاشفہ کی کتاب۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ دوسرے اور تیسرے باب کی، جس میں 7 کلیسیائیں، ان کو اسلام ہے، تنبیہ ہے، آگاہی ہے، نصیحت ہے، وعدہ ہے، ان کو تو یہ ایکسپلین بہت خوبصورت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو پوری کتاب ہے اس کی تفسیر ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے پاسٹ کو جو بلیو کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ماضی پسند مکتب، پری ایٹرسٹ اپروچ یا پری ایٹرسٹ اسکول آف تھاٹ، PREATERIST، پری ایٹرسٹ اسکول آف تھاٹ، ماضی پسند لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کی یہ پیشن گوئیاں جو ہے یہ یوحنا کے دور میں، ماضی میں پہلے ہی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں، اب کچھ ایسا نہیں ہے جسے پورا ہونا باقی ہے۔ اس لیے یہ اسکول آف تھاٹ بھی اس کتاب کی تفسیر کرنے کے پورے طور پہ اس کو پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جو چوتھا اسکول آف تھاٹ ہے اسے کہتے ہیں اصول پرستی یا تصورت کا طریقہ، اصول پرستی کا مکتب یا تصوریت کا طریقہ، آئیڈیلسٹک اور ٹائم لیس سمبولی اسکول آف تھاٹ۔ انگلش میں آئیڈیلسٹک اور ٹائم لیس سمبولی اسکول آف تھاٹ۔ ان کے مطابق جو ہے مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ چند ایک بیہیویئرز، رجحانات اور چند ایک اصول جو ہے ان پہ وہ شامل ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اس میں اخلاقی باتیں کی گئی ہیں ان پہ بہت زور دینا چاہیے، اور ہمیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، بدی نہ کریں، اور خدا کے ساتھ چلیں، دعا روزہ کلام رہے، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو عدالت کے دن کو پریزنٹ کیا گیا ہے ریولیشن میں، تو ہر وہ دن جن میں ہم کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز چھوڑنی ہے یا یہ چیز شروع کرنی ہے، تو گویا یہ قسم کی عدالت، ایک قسم کا فیصلہ جو ہے اس میں سے ہم گزرتے ہیں، اور گویا اس چیز کی ججمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ خداوند یسوع المسیح کی جو باقاعدہ زمین پہ حکومت ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ زمین پہ آ کے حکومت نہیں کرنی ہے۔ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے ریئلسٹک جو ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی باقاعدہ زمینی حکومت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ نظریہ بھی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ جو زمین پہ اکر ہوگا وہ یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح باقاعدہ آئیں گے اور حکومت کریں گے۔ اور پانچواں اور آخری مکتب اسکول جو ہے وہ ہے مستقبل پسند اسکول آف تھاٹ، مستقبل پسند مکتب، فیوچرسٹ اسکول آف تھاٹ، جو فیوچر پہ بلیو کرتے ہیں۔ ان کے مطابق چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 3 تک جو ہے وہ چرچ ہسٹری ہے جسے ریولیشن میں شامل کیا گیا ہے، اور چیپٹر 4 سے چیپٹر 22 کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے، فیوچر سے۔ کون سا باب؟
चैप्टर 4 टू चैप्टर 22। और जब वो फ्यूचर की बात करते हैं तो वो यूहन्ना से उसको शुरू कर लेते हैं, जब ये लिखी गई उसके बाद के फ्यूचर से। और इसलिए वो ये समझते हैं कि कुछ बातें हो गई हैं, कुछ हो रही हैं जिनका हम पोर्शन है, जिनमें से हम गुजर रहे हैं, और कुछ अभी होंगी। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है, मैं भी इसी का हामी हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरती से क्लैरिटी के साथ बातचीत हमारे तक पहुँचाए। सो आज जो है हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। आप ऊपर लिखेंगे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 की जो ब्रेकिंग है वो है वर्स 1 टू वर्स 3। सुपरनैचुरल बयान जो है, फौकुल फितरत बयान जो है, उसको लिखा गया है। सुपरनैचुरल सेइंग या सलाम या बयान, सलाम तो नहीं, बयान आप इसे कह सकते हैं। वर्स 1 टू वर्स 3, फिर वर्स 4 से लेके वर्स 8 तक ये है सलाम है, आदाब, कलामे बरकत, तारुफ और मुबारकबादियाँ इसके अंदर शामिल हैं। वर्स 4 से लेके वर्स 8 तक, जिसमें ग्रीटिंग्स हैं, उन्हें आदाब किया गया है, कलाम बरकत है, और तारुफ मुख्तसर करवाया गया है, और मुबारकबादियों में से पहली मुबारकबादी इसमें शामिल है। और फिर इसका आखिरी हिस्सा इस चैप्टर का वर्स 9 टू वर्स 20, इसमें नई रोया, न्यू विजन ऑफ जीसस क्राइस्ट, रेवलेशन ऑफ न्यू विजन ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदाम यीशु मसीह का मुकाशफा नई रोया के जरिए यूहन्ना को मिलता है, और उसको इसमें लिखने का हुक्म दिया जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे आयत 1 के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। जो आयत में से कोई एक इस आयत को पढ़ दे। आयत 1, 2 और 3 पहले इकट्ठी, हम पहली 3 आयत अभी देखेंगे। पहला पोर्शन इस बाब का, पहली 3 आयत जो है, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो एक एक आयत पढ़िए ताकि दूसरे भी पढ़ सकें बारी बारी। यीशु मसीह का मुकाशवा जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आमीन। सो ये 3 आयत जो है, इनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे 20-25 मिनट में। सो आयत 1 जो है उसकी बातचीत आप लिखें और कोशिश करें कि आप थोड़ा स्पीड तेज़ कर दें, ताकि हम जो है इन मुकाशफा की बातों को जब आप सीखते हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हैं, बात का मिस कर जाता है इंसान, तो लिखनी होती हैं। अब ये पैगाम की तरह बातें शुरू हो जाएगी, तो आप कोशिश करें कि इसको लिखते हैं। पहली आयत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया।
तो ये जो है देखें कि ये मुकाशफा जो है ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। देने वाला खुदा खुद है। यीशु मसीह का मुकाशफा है जो खुदा की तरफ से जो है बताया गया है, दिया गया है। और ये बात हमें सिखाती है कि खुदा यीशु मसीह चाहे जमीन पर थे या आसमान पर है, वो बाप के ताबे हैं। उनके अंदर एक यूनिटी है। ताबे होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कोई छोटा है या कोई बड़ा है। ताबे होने का मतलब ये है कि एक हार्मनी है, एक ऑर्डर है जिसके तहत सब कुछ फंक्शन होता है। जब घर में मियां बीवी है तो उनमें बात ये नहीं है कि बड़ा कौन है या छोटा कौन है। बात का बीवी जो है वो मियां को गुस्सा करती है और उसके साथ बुरी तरह से पेश आती है। बात का मियां बीवी के साथ बुरी तरह से पेश आता है या अच्छी तरह से मोहब्बत से पेश आता है। बात का बीवी मोहब्बत से पेश आती है। सो बात बड़े छोटे की नहीं है घर के अंदर। और जब हम हेडशिप की बात करते हैं, गॉड हेड की बात करते हैं, तो वहां पे भी बात बड़े छोटे की नहीं है, बल्कि बात एक हार्मनी और एक तसलसल की है। और वो ये मुकाशफा जो यूहन्ना को मिला, देने वाला खुदा खुद है और मुकाशफा यीशु अल मसीह से मुतल्लिक है। अब ये मुकाशफा जो है जो हम तक पहुंचा है, ये 5 स्टेप्स में हम तक पहुंचा है। पहला स्टेप खुदा से यीशु मसीह तक। पहला स्टेप खुदा से यीशु मसीह तक। और दूसरे स्टेप में यीशु से फरिश्ते तक। कौन मुकाशफा लेके आया यूहन्ना तक? फरिश्ता। किसने दिया ये मुकाशफा? खुदा ने। किसको, किसका मुकाशफा था? यीशु का। तो पहले स्टेप में खुदा से यीशु तक, और फिर दूसरे स्टेप में यीशु से फरिश्ते तक, तीसरे स्टेप में फरिश्ते से यूहन्ना तक। फरिश्ते ने यूहन्ना को ये बातें बताई। चौथे स्टेप में यूहन्ना से 7 कलीसियाओं तक ये मुकाशफा पहुंचा। और 5वें स्टेप में कलीसियाओं से हम तक ये मुकाशफा जो है वो पहुंचा है। 5वां कलीसियाओं से हम तक। सो इन 5 इकदाम से 5 स्टेप्स में जो रेवलेशन है वो हम तक पहुंचा है। सो मुकाशफा का मतलब पहली आयत में वो क्या बयान कर रहा है? ताकि अपने बंदों को वो चीजें दिखाए, वो बातें समझाए और बताए जिनका जल्द होना जरूर है। सो मुकाशफा के जरिए हम मुस्तकबिल को देख सकते हैं। मुकाशफे के जरिए हम फ्यूचर को, मुस्तकबिल को, आने वाली चीजों को हम देख सकते हैं। हमें किसी पीर, फकीर, जादूगर की, किसी फालगीर की, नजूमी की जरूरत नहीं है। बाइबल के लोग अगर रेवलेशन को अंडरस्टैंड कर लें तो वो सबसे बड़े नजूमी है, फालगीर है, जादूगर है, वो सबसे बड़े जो है वो जानने वाले हैं, क्योंकि वो मुकाशफा की किताब के जरिए अपने और इस दुनिया और खलकत के मुस्तकबिल को वो देख सकते हैं। अगर आप में से कोई आमोस की किताब निकाले और याद रखें कि खुदा ने ये मुकाशफा हमें दिया ताकि हम समझें, क्योंकि खुदा इस जमीन पे एक अजीब काम जो वो करना चाहता था, यूना से पहले गालबन अब्दिया है, अब्दिया से पहले आमोस है। तो खुदा कभी जमीन पे कोई काम नहीं करता जब तक अपने लोगों को वो बता ना दे। आमोस की किताब 3 बाब की 7वीं आयत, 3 बाब की 7वीं आयत पढ़ दीजिए।
यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। आमीन। तो क्या कलाम क्या कहता है? खुदा जमीन पर कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपने खिदमत गुजार नबियों पे, अपने बंदों पे उस भेद को पहले आश्कारा ना कर दे। क्योंकि खुदा ने ये टेरिटरी किसको दी है? हमें दी है ना? आदम को, हवा को दी ये जमीन जो है, हमने अबलीस को दे दी। यीशु मसीह आया, अबलीस से इख्तियार लेके वापस हमें सौंप दिया उसने। इसलिए हम इसके जो है वो जिम्मेदार हैं, इसके इंचार्ज हैं, मुख्तार हैं। इसलिए खुदा खुद भी जब तक मुख्तारों को पहले बता ना दे वो जमीन पे कुछ नहीं करता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, चंद एक अगर आप लिखना चाहें। सदूम और अमूरा, सदूम और अमूरा में जब खुदा ने आग और गंधक की बारिश बरसानी और तबाह करना था, तो कलाम में लिखा है खुदा ने कहा कि क्या इसे मैं अपने बंदा इब्राहिम से पोशीदा रखूं? और खुदा ने पहले उसे बताया और उसने दुआ भी की, लेकिन उसकी दुआ जो उसने की तो उसके मुताबिक लोग ही अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो बच ना सके। पैदाइश 8वें बाब की 70वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 17 अगर आप पढ़ें तो इसमें आपने पढ़ा होगा। पट्रीशा ने भी पिछले ही दिनों इसको पढ़ा है, सो अच्छी तरह से, और भी इन दिनों में जिन्होंने किताब मुकद्दस शुरू की है उन्होंने पढ़ा होगा। ये बड़ा खूबसूरत वाकया है। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 17। इसके बाद नूह का तूफान है, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई, और इसकी तबाही का ऐलान और पैगाम जो है 120 साल पहले खुदा ने नूह को दिया, और नूह 120 साल मुनादी करता रहा इस बात की कि खुदा इस जमीन को तबाह